हाय एवरीवन। सो आज हम फिर तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एंड इट्स ऑल लाइक सब आपके सामने है, राइट। इट्स नथिंग लाइक कुछ बियॉन्ड बातें हो रही है या फिर कोई ऐसा सोर्स हो रहा है। दैट सोर्स इज ऑब्वियसली आई एम कवरिंग द टेस्ट सीरीज पार्ट। इफ यू आर पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज यू शुड नॉट बी वरी, बट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दैट इज डेली बेसिस पे इट्स टोटली इन फ्रंट ऑफ यू। जस्ट यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट और आप उससे गो थ्रू नहीं कर पा रहे हो, राइट। सो लर्न करो अच्छे से। यहाँ पे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द एज पर द रूल्स स्मॉल बिजनेसेस सच एज हॉकर्स एंड वेंडर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद FSSAI। तो FSSAI में ओनली द बिग बिजनेसेस आर रजिस्टर्ड एज पर द स्टेटमेंट। यू हैव टू मार्क इट रॉन्ग और राइट। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, एज पर द एक्ट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द रूल्स, states are prohibited. So as per the act, whether this act has given power to states to make rules regarding food, anything, right? So ये हम देखते हैं, right? This is what. तो answer to this question, okay, sorry, the answer is visible. Answer is D. It's both statements are incorrect here. Now if you see here, it's a total from the article it is taken. और आप देखो यहाँ पे अंडर, थोड़ा सा और मैं जूम कर रहा हूँ, under the Food Safety Act, it's under the rules that the petty food manufacturers such as small scale businesses, hawkers, vendors and stall holders are required to register with the FSSAI. So it's not only about the big businesses, it's also about the small one who has to register with the FSSAI. Now if you see the second statement, does states has power to frame rules? Yes. Section 94(1) of the FSSAI says, you see here, okay, it says that subject to the powers of the central government and the authority to make rules and the regulation respectively, the state government may, after previous publication and with the previous approval of the food authority, make rules. अब हम आगे नहीं पढ़ेंगे. Yes, it has power under the act to make the rules. So this is a incorrect statement that only the central government can make the rules. ठीक है, तो this is what. अब ये आर्टिकल से directly framed the question and तो hopefully if you are reading some article, I think this is from the Indian Express or the Hindu, I don't remember, but yes, it is from I think Indian Express. So आपको यहाँ उसके अंदर से ये मिला है, right? Now second question आप देखो, बहुत interesting question है, map based question है and you will really enjoy this. It's not a very difficult. Now they are like, आप देखो यहाँ पे कि इजराइल का वॉर चल रहा है and then it's a simple Israel roughly map. Now Mediterranean Sea I asked, it is a west. Gulf of Aqaba I said it is here, Gulf of Aqaba, okay, and Dead Sea I said in the north here. Now I have asked this question, okay. Now if you see the solution here, this is Israel, Gulf of Aqaba in the south, ठीक है, Gulf of Aqaba south, Mediterranean in the west and Dead Sea is here. So which place here is not matched? This is Dead Sea. Dead Sea is not in the north of Israel, it is just like east of Israel. ये देखिए, okay. So make sure ये इजराइल वाला मैप आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे. It's like blunder है, it's like non-serious candidates will do mistake here. If you have done this question wrong, it's disappointing, okay. नहीं होना चाहिए, राइट, नहीं होना. सी डोंट थिंक लाइक कि आप सब कुछ एंड में कर लोगे. यू आर थिंकिंग इन दिस वे कि सब हो जाएगा, बट इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, बिलीव मी, ओके. ग्रेजुअली इसीलिए आप देखो कि आई स्टार्टेड दिस एकेडमी एंड आई टेल एवरी स्टूडेंट कि आप वीकली काम करो, 2-3 घंटे मेरे साथ बैठ के एंड थिंग्स विल बिकम ईजी. बट इट्स ऑल ऑन द स्टूडेंट्स, दे वॉन्ट टू और दे डोंट वॉन्ट टू, ओके. चलिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर today's is about the which of the following statements, classical languages, are not the part of the 22 languages in the 8th schedule. So first thing you learn here is 8th schedule में there is a 22 language list. ठीक है. अब recently you see here the 10 or 11 classical language, before it was 6 and 5 more added, right? Recently 5 more added, तो total 11 languages are there. अब ऐसा which language is there जो इसका part नहीं है? ये 11 लैंग्वेज में से कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो इस 22 का पार्ट नहीं है?
नहीं। तो अगर आप 11 लैंग्वेज का लिस्ट जान रहे हो देन ओनली आप फाइंड कर सकते हो। और इवन इफ फ्रॉम द ऑप्शन यू सी ओरिया, बंगला, पाली, मराठी। ओके, तो अगर मैं बहुत फ्रेशर हूँ तो मराठी में आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। एंड ओरिया में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज इट्स लाइक लास्ट लैंग्वेज एज ए क्लासिकल बिफोर दिस वर एडिशन, तो ओरिया कहीं ना कहीं ठीक है। बांग्ला और पाली में, पाली तो बिल्कुल कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूजिंग है। बांग्ला थोड़ा सा इशू कर सकता है बट आई थिंक ठीक है। इफ़ आई वेयर फ्रेशर पाली मार्क करके आता ओनली वन। ओके, तो आप आंसर देखिए, येस इट इज़ पाली एंड दीज आर द 22 लैंग्वेजेस और ये हमारे 11 लैंग्वेज, ठीक है। तो पाली और प्रकृत जो है ना, दिस आर नॉट इन द पार्ट ऑफ 22। पाली एंड प्रकृत याद रखोगे, डबल पी। अदरवाइज ऑल लैंग्वेज आई थिंक यू आर फाइंड, इट्स नॉट आई थिंक, इट्स ऑल इन द लिस्ट। तो पाली और प्रकृत का याद रखोगे कि येस, इफ द क्वेश्चन सेज ऑल क्लासिकल लैंग्वेज आर पार्ट ऑफ द 22 लैंग्वेज मेंशन द 8 शेड्यूल, इनकरेक्ट, दे आर 2, दैट इज नॉट द पार्ट, ठीक है। तो रिवर्स ये ऐसे स्टेटमेंट्स याद रखोगे। क्लासिकल पे आया है तो दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिकल, दे विल आस्क यू विच ऑफ द लैंग्वेजेस एडेड दिस ईयर, ये पूछ सकते हैं आपसे, ये एक टफ क्वेश्चन हो जाएगा। इस साल 5 कौन एडेड, वो भी इजी है आई थिंक इफ यू हैव रेड। अदरवाइज अगर आपसे इस तरीके से घुमा के पूछेंगे देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो मेक श्योर यू आर लर्निंग दीज थिंग्स हियर। कैसा लग रहा है आपको, आप थोड़ा कमेंट में बताना। यू आर रियली एंजॉइंग दिस सेशंस और डेली क्विज और इवन टेस्ट सीरीज इफ यू आर पार्ट ऑफ अभ्यास सेशन, सब कुछ इट्स लाइक ऑल रिगार्डिंग प्रीलिम्स एग्जाम में फेल होने का चांस ही नहीं है, राइट। तो दिस इज व्हाट, चलिए दिस इज फॉर द टुडे, विल सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टुमारो।